you all. Sit straight, आंखें बंद, normal breathing. Slowly breathe in, gently breathe out. Again breathe in, slowly breathe out. Join your hands in नमस्ते मुद्रा. दोनों हाथों को जोड़ दें. एक लंबी गहरी सांस अंदर. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम शांति शांति शांति. Bow down. Very slowly and gently open your eyes. बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलें. So you must be wondering, what is mind yoga, right? So this is क्या है mind yoga, वो हम अंजलि पे छोड़ देते हैं, right? So अंजलि क्या है ये मैं आप सबको बता देती हूँ. सबसे पहला इंट्रोडक्शन, जैसे अंजलि खुद बोलती हैं कि मेरा सबसे पहला इंट्रोडक्शन और मेरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि आई एम अलाइव. सो दैट इज सच अ ब्यूटीफुल way of actually knowing yourself, I would say, है ना. So जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि breath is the most important thing in your life, right? But unfortunately that is the most ignored thing also in your life. But yes, breath is the most important and fundamental thing in your life, right? So Anjali और हम लोग I think we met 4 months back, 4 or 5 months back, and we clicked together, right? So kahin na kahin se I think there were similar energies, I would say, or maybe kuch ho sakta hai purane janmon ka bhi ho, that we could connect so quickly and so strong, right? So Anjali, pehli baat, she is alive, so that is her most beautiful way of explaining her qualification. उसके अलावा एक्चुअली उनके बारे में उन्होंने जो लिख के मुझे भेजा है, शी इज मच मोर देन दैट, राइट? बट एक ब्रीफ जो वो उनके हिसाब से है, दैट शी इज न्यूट्रिशन एडवाइजर फ्रॉम NHI कैलिफोर्निया. शी इज a diabetes educator from International Diabetes Federation. She is an Ayurvedic acupressure therapist also from IGNO, and she is pursuing many courses actually, right? So these are pregnancy fitness trainer, childbirth educator, image coach, and soft skill trainer. She has conducted many workshops throughout India, pan India, right? So she has been associated with Rotary Club, Lions Club, and many actually your this samaj hote hain, Jain samaj mein bhi, Agrawal samaj or whatever samaj, Jain, right? So she's been associated with many communities, and she's been helping people. And she might not be doing all the workshops professionally that I know, but she's been helping people with smallest of their actually what you say maybe needs also, right? कि वो मुझे कल परसों ही बता रही थी that she used to किसी ने बोला कि yo Anjali, you drape sari very nicely. Okay, I'll have a workshop on that. So she's such an enthusiast, I would say, कि वो आती है ना क्लास में, my class is so vibrant, I would say. कभी भी मैं पूछूंगी अच्छा ये कराऊं, yeah, she is always open to ideas, she is always open to learn new things,
right? So which is like a very good thing for a teacher. A teacher would plan her day कि हाँ मैं अंजलि को कहाँ से ज्यादा दे पाऊँ, right? Because it's very satisfactory for a teacher also to have such students. So she's a very keen learner and a very disciplined student. So I really love her for her zeal to learn yoga or whatever. And I'm sure whatever she does it with perfection. She does it with full life and energy and whatnot. She puts her heart and soul into whatever she does. So that is my brief introduction of Anjali. Rest, Anjali will tell you what mind yoga is. We just had a 2 minute talk on mind yoga 3 days back, and we planned this workshop. So I am sure you guys are going to have a different perspective on why you are doing yoga or how actually you should perceive it. So it's going to be very interesting for you and for me as well. Thank you, Anjali, for just hopping, maybe, right? Or hopping on the idea, and we it's so impromptu, right? So I really love it. So thank you, and it's over to you, Anjali. Stage is all yours today. So thank you so very much, Manjuji. And like she said, we connected immediately. और जो उन्होंने एक बात बताई कि इट्स एब्सोल्युटली इम्प्रॉम्प्टू. सो आज जो भी निकलने वाला है पूरा पूरा दिल से निकलने वाला है. इट इज बेस्ड ऑन माय अनुभव एंड माय लर्निंग्स इन लाइफ एंड माय एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. सो आई फील वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज्ड टू बी एबल टू प्रेजेंट मेरे विचारों की अंजलि to all of you so that it can benefit you in your life. Okay, so before I get started, सभी को नमस्कार. और एक गुजारिश है आप सबसे, अगर आप माइंड वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, माइंडफुलनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कम से कम अपना कैमरा ऑन रखिए, नहीं तो आपका दिमाग कहीं और घूमता रहेगा और आप सिर्फ प्रॉक्सी बन के इसमें प्रेजेंट रहेंगे पर इसका एडवांटेज नहीं ले पाएंगे. So if you're putting a little time of your life into it, I really pray that you get the benefit out of it. Okay? और दूसरी एक बात, I would highly encourage you to get a pen and paper ready. This is going to be a very interactive workshop. और बातें तो हम नहीं करेंगे पर हम चैट बॉक्स में जरूर प्रेफर करेंगे कि आप रिस्पॉन्ड करें. इससे क्या फायदा होगा? यू विल बी प्रेजेंट हियर एंड दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट माइंडफुलनेस. क्योंकि हमारा एडल्ट ब्रेन जो है ना, इसमें बहुत सारी चीजें भरी पड़ी रहती है. Okay, so mindfulness की बजाय mind is full of multiple ideas, and that is what we call distractions, and it does not help us to achieve what we want to achieve in life and the way we want to achieve in life. So mind full रखने के बजाय mind full आज हो जाएंगे. ठीक है? So शुरू करने के साथ ही सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी. And I want you to scribble whatever comes to your mind, just a couple of words. और मैं किसी को भी अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट करूंगी मंजू जी से, और आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन देंगे. So I just want you to write down something about you, your introduction. Okay? मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ. So I hope you have started scribbling and started writing. So I'm seeing more of women here. So women are more enthusiastic about better life and being more mindful. Because I completely believe that, okay, am I muted? No, you can hear me. Okay. So now when I ask about your introduction, what have you written? Have you written about your occupation? Have you written about your qualification? क्या लिखा है आपने?
मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं योगा टीचर हूँ, क्या लिखा आपने? चांसेस आर वेरी हाई कि आपने इन्हीं में से कुछ लिखा होगा। और ये मुझे क्यों पता है? क्योंकि एक जमाना था कि मैं भी अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी अपने क्वालिफिकेशंस और अपने ऑक्यूपेशन के ऊपर। और मैं आज आपको एक अपने जीवन की सत्य घटना बताती हूँ। ये साल है 2006 और मैं अपोलो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही थी एज अ डायबिटीज एजुकेटर। और मेरी टेंडेंसी है, बिकॉज आई एम एन इमेज कोच ऑल्सो, यू अंडरस्टैंड दैट इज बीन द वे आई हैव ऑलवेज बीन, आई एम ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड एंड आई हैव बीन एबल टू मेंटेन माई फिटनेस। तो उसके लिए क्या है कि व्हेन यू आर स्मार्टली ड्रेस्ड एंड यू आर टॉल, यू लुक वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, फीचर्स चाहे जो भी हो, वो जेनेटिक है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, पर मैं जो कर सकती हूँ है ना, आई हैव ऑलवेज मेड श्योर दैट माई आईज स्पार्कल, माई फेस हैज अ स्माइल ऑन इट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो मैं कहीं पे पहुंचती हूँ उसके पहले मेरी एनर्जी पहुंच जाती है। दैट इज हाउ आई एम, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि माई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इज बीइंग अलाइव। सो मैं अपोलो हॉस्पिटल में सीढ़ियां उतरने वाली थी, तो वहां पे एक लड़की मेरे पास दौड़ के आई और मेरे को पूछा, मैम आपको रोज देखती हूं, आप कौन हैं? तो मैंने बोला मैं अंजलि। तो बोले अंजलि कौन? तो मैंने कहा मैं अलाइव हूं। तो बोले हाँ वो तो समझे, पर आप क्या करती हैं? मैंने कहा मैं अपने घर की देखभाल करती हूँ और बच्चों की बेहतरीन परवरिश करती हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूं। बोले हाँ पर आप करते क्या हैं? एंड शी वॉज सो अटरली कंफ्यूज्ड। और मैं आपको बताऊं, मुझे लोगों को कंफ्यूज करने में बड़ा मजा आता है। सो आज मैं अगर आपको ये बताऊं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है, आपका क्वालिफिकेशन नहीं, क्योंकि आप 24-25 साल के हुए तब तक आपके पास शायद कोई बोलने लायक क्वालिफिकेशन नहीं था, और जब आप रिटायर करेंगे तब क्या बोलेंगे? मैं अभी तो कुछ नहीं हूं पर किसी जमाने में इंजीनियर हुआ करती थी, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, है ना? सो व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन फॉर हु यू आर? मैं जिंदा दिल हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, मैं हेल्थ में बहुत फोकस करती हूं, मैं प्यार करती हूं लोगों से। आप कौन हैं? और मैं आपको बताऊं, जब भी मैं ये सवाल किसी को करती हूं कि आप कौन हैं, तो 99% पीपल कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमने अपने क्वालिफिकेशन को अपनी आइडेंटिटी बना लिया और वो एक छोटे से कुएं के अंदर हम अपनी जिंदगी बसर करते हैं। इसका मतलब क्या है? एक टीचर है वो पढ़ाता है, एक अगर कोई आईटी प्रोफेशनल है तो प्रोग्राम बनाता है, एक अगर डॉक्टर है तो मरीजों को ठीक करता है। पर कितने लोग अपने फैमिली, अपने माइंडफुलनेस, अपने स्वास्थ्य, अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं? वो चीजें जैसे कि जिंदगी का कोई हिस्सा ही नहीं है। My life is only about being an engineer. My life is only about being a doctor. And if that is where you have been, today I want to bring you to understand कि आप उसके अलावा बहुत कुछ है। वो तो सिर्फ एक तुच्छ छोटा सा हिस्सा है आपकी जिंदगी का। वो आप नहीं है, वो सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन है। राइट? सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। और सेशन शुरू करने से पहले ही मैं सबसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। अब आपको लगेगा अभी तो शुरू भी नहीं किया, ये क्षमा क्यों मांगना चाह रही है? क्योंकि आज मैं बहुत सारे सत्य आपके सामने पेश करने वाली हूँ जो आपको झंझोड़ने वाले हैं, जो आपके दिल के कुछ तारों को बुरी तरह छेड़ने वाले हैं, और शायद आपको कुछ कष्ट भी होने वाला है। And I believe everybody that I can see here are all adults. तो मैं straight talk कर सकती हूँ। Do I have your permission for it? Show me a thumbs up. Wonderful, wonderful. So that's where we are going to start, a straight talk, because mindfulness is about being straight. Okay? So आइए अब बात करते हैं योग क्या है। योग मंजू जी की परमिशन से, योग का साक्षात मीनिंग है यूनियन।
यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। और पहले योग इसलिए किया जाता था कि योग से हम अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते थे ताकि हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर पाए। सो अपने आप को वृद्ध करने का, ग्रो करने का, इंटरनल पर्सनल ग्रोथ, योग was a roadmap, if you say that. Road was the GPS. Road was a program to take you to higher consciousness. पर आजकल योग को हम क्या समझते हैं? योग को हम ये समझने लगे हैं ये एक वेट लॉस प्रोग्राम है, या ये मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, या मेरी क्या बोलेंगे कि मेरे बॉडी को सपल बनाएगा, मेरा स्ट्रेचिंग हो जाएगा अगर हम योग करेंगे। अगर योग को आप सिर्फ एक फिजिकल एंटिटी मानते हैं, एक फिजिकल प्रोग्राम मानते हैं, तो आप बिल्कुल उस झरने की तरह हो जाएंगे जो हमेशा गिरता पड़ता टकराता रहता है। उसमें ना कोई डेप्थ है और ना ही कोई डायरेक्शन है, वो कहीं पे भी गिरता पड़ता रहता है। तो एक झरने का पानी शीतल जरूर होगा, वो प्यास जरूर बुझाएगा, पर वो औरों को कुछ दे नहीं पाएगा। पर अगर आप योग संपूर्ण तरीके से समझें, कंसिडरिंग इट एज अ प्रोग्राम फॉर नॉट जस्ट योर बॉडी बट ऑल्सो इन्वॉल्विंग योर माइंड एंड योर सोल, आप बिल्कुल उस गहरी नदी के जैसे हो जाएंगे जो ना सिर्फ शीतल जल देगी पर आजू बाजू में इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन, आप जहां से जिंदगी की राह में गुजरेंगे आप लोगों को फर्टिलाइज करते चले जाएंगे। आपकी एक दिशा होगी और आप निरंतर रहेंगे। सो दैट इज बेसिकली योग टू मी। योग गिव्स मी डेप्थ, योग गिव्स मी डायरेक्शन, और डेप्थ अच्छी है इसीलिए हाइट अच्छी होती है। अब आप मेरी बातों में सुनने वाले हैं कि प्रकृति के साथ बहुत मिलन है। मेरी हर बातों में प्रकृति आएगी क्योंकि मैं मानती हूं मदर नेचर ने मुझे सबसे ज्यादा सिखाया है। अभी आप सोच के देखिए कि जो बैम्बूज होते हैं या जो क्या बोलते हैं कोकोनट ट्रीज होते हैं, ये जितने लंबे होते हैं ना पेड़, उतनी ही उनकी जड़ें उतनी डीप होती है। तो योग की डेप्थ में जब आप जाएंगे और उसको समझेंगे तभी आत्मा की सिद्धि और ऊंचाइयों तक आप पहुंच पाएंगे। मंजू जी, am I going on the right track? Thank you so much. So this is the introduction of yoga, and I hope that today, after today, you understand in totality, complete totality. अब आइए बात करते हैं दिल के तार को छेड़ने वाली। तो हमने बहुत बार ये बात सुनी है that your body is a temple. हमने ये बहुत बार सुना है that's the only place you have to live. पर क्या हम इस बात की गहराई को कभी समझ पाए हैं? So मेरा ये सवाल है। Now think about it. Nothing personal, but this is reality. आपके नजदीकी कोई, बहुत अपना कोई, जब उनका स्वर्गवास हुआ, आप उस पल को याद करें। आपके माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, एकदम बंधु परिचित हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, कोई आपका बहुत ही अपना जब उनका स्वर्गवास हुआ, तो उसके बाद उनके शरीर को लोगों ने उस इंसान का नाम देने के बजाय क्या बोलना शुरू किया? बॉडी को इधर रख दो, बॉडी को इधर रखो, बॉडी को इतने बजे लेके जाएंगे अंतिम यात्रा के लिए, हाँ या ना? अरे भाई वो तो एक इंसान है। नहीं, नाम किसका था पता है? नाम उसके अंदर बसती हुई आत्मा का था, और जब वो आत्मा छोड़ गई उसको, तब वो सिर्फ शरीर मात्र रह गया। सो दैट इज वेयर योग हेल्प्स यू टू फोकस। बट विवेकानंद जी ने कहा है कि अ हेल्दी माइंड कैन ओनली रिसाइड इन अ हेल्दी बॉडी। सो योग की हम शुरुआत करेंगे, अगर हम नर्सरी की बात करेंगे योग की, तो वो सिर्फ शरीर से शुरू होगा। पर जब तक आप उसको अपने माइंड के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, आप उसका संपूर्ण बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो हम माइंड के साथ कनेक्ट तो करते ही हैं, हम योग कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो, माइंड के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं? आइए देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल।
सो मंजू जी के साथ जिसने भी सेशन किया है, जब सेशन एंड होता है तो वो बोलती हैं रिलैक्स इन शवासन, फाइनल शवासन, है ना, और हम सब रिलैक्स हो जाते हैं, फैल के लेट जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत वर्कआउट कराया है तो अब तो अधिकार मिला है फैलने का, है ना। पर जब वो बोलती हैं रिलैक्स योर टोज, योर हील्स, योर एंकल्स, योर काफ, योर नीज, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रियलाइज्ड कि वहां पे आपने फिर भी कुछ स्टिफनेस पकड़ के रखा था, जैसे ही उन्होंने आपको माइंडफुल कराया आप उसको रिलीज कर पाए। सो हमें लगता है हम माइंडफुल हैं, पर हम होते नहीं है संपूर्ण तरह से। इसीलिए हमें एक शिक्षक, एक गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें गाइड करे और हमें रियलाइज कराए। करना तो हम ही को है। मेरे योगा गुरु मेरे को रिलैक्स नहीं करा सकते, मैं खुद ही खुद को रिलैक्स करा सकती हूँ। और जब वो बोलती हैं कि एक भी सांस आपके परमिशन के बिना अंदर ना आ सके और एक भी सांस आपके परमिशन के बिना बाहर ना जा सके, दैट मीन्स यू हैव टोटल कंट्रोल of your breath also. Total control of breath means total control over your life, and that's such a liberating feeling. That's so powerful that I am in control. Most of the times today, we are influenced negatively, unfortunately, by circumstances. But this practice is your GPS to wherever you are headed in life. And that is what yoga means to me. Okay? So अभी हम बात करेंगे ये जो liberated life, this beautiful life experience की। तो वापस से मैं आपके दिल के तार को छेड़ने वाली हूं। अब आप सोच के देखिए, जब हम पैदा होते हैं, our birth time and our death time, we don't have any control over either. At birth, our body is supple, is very flexible. आपने कभी देखा कि बच्चे गिर गए और हड्डी टूट गई? Why? Because they are very, very supple. और फिर हम अगर बात करें एक डेड बॉडी की, तो दैट इज कंप्लीटली स्टिफ, अकड़ होती है उसके अंदर टोटल। एंड ईच डे ऑफ योर लाइफ यू आर इंचिंग टूवर्ड्स स्टिफनेस। सो मुझे ये एहसास होता है कि जब मेरा शरीर स्टिफ होता है, मतलब मेरी मौत नजदीक आ रही है। But if you make your body supple and flexible, you have the permission from nature to remain young till the last breath of your life. Now, one thing very peculiar I have noticed is, जिनके शरीर स्टिफ होने लगते हैं ना, उनके विचार भी संगी संग स्टिफ होने लगते हैं। और स्टिफ विचार क्या होते हैं? अरे सुबह मैंने चाय नहीं पीना, तब तक तो मुझे मजा ही नहीं आता। अरे मेरा सिरहाना इधर ही मुझे सही लगता है, अगर बेड को घुमा दिया ना, मुझे आज नींद नहीं आएगी। यही तकिया मुझे चाहिए, या इसी में हम खाना बनाएंगे, इसमें नहीं बन सकता। या अगर बच्चा बोले कि मुझे म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ना है, तो आपको अगर म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई नहीं होगी तो आप उसको बोलोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। That means you're not at all open. You are rigid, you are fixed, you have fixed ideas. Now, let me just tell you something which very recently happened in our lives. Our son, who's 24, he'd gone to US for his aviation training. He's a pilot. और वहां पे उसको पसंद आ गई कैथरीन। तो कैथरीन is an American girl. And the first reaction when I told people कि बेटे ने कैथरीन को पसंद किया है, people were like, अमेरिकन बहू एडजस्ट कर पाएगी क्या? इंडिया भी आएगी क्या? तुमको चलेगा? तुमने एक्सेप्ट कर लिया? I am not rigid, so I could accept it. But most people, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, they cannot accept, they revolt to the idea because आपको लगता है उससे डिस्कम्फर्ट होगा। So that is called rigidity. रिजिडिटी का होता क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ।
अभी हाल फिलहाल में ही पिछले महीने 2 बड़े साइक्लोन्स ने इंडिया को हिट किया, एक बॉम्बे की तरफ, सो ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, और एक वेरी रिसेंटली ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप जहां पे हैं वहां बड़े जोरों की आंधी चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, और आप विजुअलाइज कीजिए कि आप एक मैदान में हैं जहां बड़े बड़े पेड़ हैं जो अब स्वे करने लग गए हैं, और कहीं एक पेड़ आपके नजर के सामने उखड़ के गिर जाता है। अब मुझे ये बताओ, ये सोचो, लिखो आप, ये पेड़ के उखड़ने की वजह क्या थी? सारे पेड़ नहीं उखड़े, पर कुछ एक पेड़ उखड़ के गिर गए। आप लिखिए इसकी वजह क्या हो सकती है। Now, if you have written the pad was stiff, it was not flexible, it could not bend, इसीलिए उखड़ गया। You're absolutely correct. क्योंकि उधर ही जहां पेड़ थे वहां घास भी थी, वेरी हम्बल, जो हवा की तेजी के सामने अपना सर झुका ली, तो जैसे ही हवा बीत गई वो सर उठा ली। So if you have the stiffness in you, the storms of life can uproot you completely. At the same time, सारे पेड़ नहीं उखड़े। क्यों पता है? क्योंकि उनकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि even though they were stiff, their जड़ें वर मजबूत। और ये जड़ क्या है? आपकी अपनी प्रिंसिपल से पहचान, आपका कैरेक्टर स्ट्रेंथ। वो अगर बहुत स्ट्रांग है तो वैलीज में, लाइफ की ऊंचाई नहीं, वैलीज में, गहराइयों में, दैट इज वेयर इट इज गोइंग टू सपोर्ट यू टू गेट बैक अप अगेन। सो वो जड़ें आपको चाहिए मजबूत, एंड योग कैन हेल्प यू डू दैट, नॉट जस्ट विथ योर बॉडी बट विथ योर माइंड ऑल्सो, राइट। सो अभी अगर हम बात करें कि योग हमारे शरीर को क्या देता है, तो मैंने 3 चीजें आइडेंटिफाई करी हैं। योग प्रैक्टिस करने से हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है, योग प्रैक्टिस करने से हमारे शरीर में स्ट्रेंथ आती है। नाउ इफ आई एक्सप्लेन, अगर मैं हलासन करती हूं तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अगर मैं पादस्थासन करती हूँ तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, पश्चिमोत्तासन में, धनुरासन में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो योग अलाउज मी टू बिकम फ्लेक्सिबल, गाइड्स मी एंड टीचर्स मी टू बिकम फ्लेक्सिबल, ओके। और ये फ्लेक्सिबिलिटी आती कैसे है? हम जब भी एक पोस्चर में जाते हैं तो हमें स्ट्रेच महसूस होता है, which gives us pain and makes us uncomfortable. But if you hold the stretch for a while, progressively आप देखेंगे कि आप ज्यादा स्ट्रेच कर पा रहे हैं, and then you can call that your body is flexible. And the more flexible our body is, हम गिरेंगे पड़ेंगे ना तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, because our body is not stiff, it is flexible. मतलब हम अपने आप को इंजरी प्रूफ बना सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर मुझे हैंड स्टैंड करना है, अगर मुझे अभी जैसे मैं सीख रही हूँ हेड स्टैंड करना है या मुझे मयूरासन करना है, तो मुझे वहां पे स्ट्रेंथ चाहिए। मुझे बकासन करना है, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। सो योगा इवन प्रोवाइड्स यू विथ स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ आपको मिलता कैसे है? बाय प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो जब आपको कुछ एक आसन कराए जाते हैं इन मल्टीपल सीक्वेंस, आपके बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होता है टू हैंडल दैट। सो स्ट्रेंथ डेवलप होगा थ्रू प्रोग्रेसिव ओवरलोड, हमेशा ज्यादा ऊंचा और टफ, ओके। And the third thing that yoga provides us, which very few people admit or understand, is balance. So अगर मुझे वृक्षासन करना है तो मुझे भाई बैलेंस चाहिए, है ना। अगर मुझे गरुड़ासन करना है तो मुझे बैलेंस चाहिए। So yoga even trains you to get a balance.
और अगर आप में से कभी भी किसी ने योग प्रैक्टिस किया है तो आपके गुरु ने जरूर आपको बोला होगा कि बैलेंस अगर नहीं हो रहा है तो वो बोलेंगे आपकी नजर एक जगह पे केंद्रित कीजिए और आप देखेंगे कि बैलेंस आपको अपने आप मिलेगा. दैट मीन्स लर्निंग टू फोकस ऑन समथिंग हेल्प्स अस बैलेंस. अभी इन्हीं 3 चीजों को, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस को इन टर्म्स ऑफ माइंड देखते हैं. माइंड में भी ये तीनों चीजें चाहिए, उसके बिना आपका जीवन में बहुत असुविधाएं आएंगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे और आप अपने आप को इनकेपेबल मानेंगे उसको हैंडल करने के लिए. क्योंकि योग का एम है टू मेक योर माइंड पीसफुल, बट इट गोज थ्रू योर बॉडी. शरीर से शुरुआत होती है. सो अगर माइंड की हम बात करते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये क्या चीज हुई? नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है. इनफ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स. एंड लेट मी एक्सप्लेन. अगर मैं आपसे पूछूं, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स कि आप बागीचे में गए हैं जहां रंग बिरंगे खूबसूरत फूल बहुत तरीके से उगाए गए हैं, एक हार्मनी है, इतने सारे कलर्स है पर देयर इज हार्मनी, देयर इज ब्यूटी. अब आप एक दूसरे बगीचे में अपने इमेजिनेशन में चले जाइए जहां सिर्फ एक ही रंग के फूल हैं. मुझे बताइए कौन सा ज्यादा आकर्षित लगेगा आपको? So you can put 1 in the chat box if you feel कि रंग बिरंगी जो है वो ज्यादा आपको first one. Okay, so most of you are saying first one. So रंग बिरंगी फूल आपको ज्यादा पसंद आते हैं. क्या हमने कभी हर इंसान को एक अलग रंग का फूल समझा है? अगर रंग बिरंगे फूल नहीं होते, अगर हर इंसान सिर्फ हमारे जैसा ही सोचता, तो वो दृष्टि, वो व्यू, वो बहुत सुहावना तो शायद नहीं होता. तो हमें पसंद तो है रंग बिरंगी, पर जहां हमें डिस्कंफर्ट होता है, हमें इनकन्वीनियंस होता है, हम रंग बिरंगी एक्सेप्ट नहीं कर पाते. दैट इज वन काइंड ऑफ रिजिडिटी. अनदर काइंड ऑफ रिजिडिटी, आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. जब मैं वर्कआउट करती थी, जिम में जाती थी, so there were some people who had amazing body. So जब मैंने किसी को बोला घर आके कि पता है जिम में ये लड़का था, उसका तो क्या बॉडी है, क्या मसल्स है, तो मुझे तुरंत क्या बताया गया? अरे वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं. आपको कैसे पता? क्योंकि आपने कोशिश करी शायद और आपके मसल्स नहीं बने, क्योंकि आपने उतना फोकस्ड होके काम ही नहीं किया. तो आपने ऐलान कर दिया कि जितने लोगों के अच्छी बॉडी है सारे स्टेरॉइड्स लेते हैं. आज मेरे पास बहुत सुंदर बॉडी है पर मैंने स्टेरॉइड्स नहीं लिया. ये भी मैंने देखा है कि पीपल हैव सच स्टिफनेस कि वो किसी को सुनेंगे कि इनके पास बहुत पैसे, देखो गाड़ी खरीदी, कितनी सुंदर गाड़ी है, तो वहां बोलेंगे अरे छोड़ यार, गरीबों के खून चूस के अमीर हो जाते हैं ये लोग. और ये लोग खुद कभी अमीर हो ही नहीं पाते, क्योंकि वो एसोसिएट किए हैं कि गरीबों के खून चूसेगा वही अमीर बनेगा. दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस इज माइंड. अगर मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मुझे सुबह उठ के नहाना पसंद नहीं है, मैं शाम को नहा लिया करूंगी, नहीं सुबह उठ के ही नहाना चाहिए, दैट इज स्टिफनेस ऑफ माइंड. अगर मेरे बेटे ने बोला मम्मी मुझे रात में पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, नहीं रात में कहाँ नींद आएगी, पढ़ेगा क्या तू, सुबह सुबह उठ के सूर्यास्त के पहले उठ के पढ़ना चाहिए, क्यों मैं पढ़ी थी ऐसे. दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी, दैट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. सो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, मैंने क्या कहा कि यू हैव टू गेट इन द इनकन्वीनियंस जोन. और एक गाना मैंने सुना था बहुत खूबसूरत, वो गाने के अल्फाज हैं, what doesn't kill me makes me stronger. And think about the depth of the message communicated in this song.
So if you really want to practice flexibility of mind, start with practicing flexibility of body. मंजू जी हमेशा कहती है, अगर मैं जाके सुखासन में बैठती हूँ, बोलती है हमेशा ये पैर ऊपर रखती हूँ, अभी ये पैर ऊपर रखो. मेरे जो ब्रेन कोच है वो मुझे बोलते हैं रोज दाहिने हाथ से मंजन करती हो, आज बाएं हाथ से मंजन करो. Now what that means is I am learning to do other things which are not mechanical or convenient. इससे क्या होगा, my mind becomes flexible. तो कुछ भी ऐसे हालात पैदा होंगे जो जिसकी मुझे आदत नहीं है, तो मुझे विपरीत चीजें हैंडल करना आता है, तो मैं बड़े तरीके से करके निकल जाऊंगी. बिकॉज प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोग्रामिंग ऑफ बॉडी. So that is what. So practice something which is not your regular practice. आप अगर चाय पीते हो दाहिने हाथ से कप पकड़ के, आप बाएं हाथ से पकड़ के पीजिए. Not a very different thing. पर क्या होगा पता है, आपका concentration वहां पे चला जाएगा. And if you have not heard this story, let me tell you this. In this perspective, there was this guy, ऑफिस में काम करता था और सब लोग बहुत वियर्ड लगते थे उसको, अच्छे नहीं लगते थे. तो वो अपने ऑफिस के एचआर के पास गया और उनको जाके बोला, आई थिंक तुषार गॉट हाईलाइटेड, या. सो उनको जाके बोला कि यहाँ पे सारे लोग अजीब हैं, सारे लोग कैसे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बातें ऐसी करते हैं, एंड आई रियली रियली डोंट लाइक दिस. सो वो इसीलिए मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं, मैं इस ऑफिस में और काम नहीं कर सकता. सो एचआर वाले जो थे उन्होंने बताया कि सर वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड, और ये तो बिल्कुल आप ही की विश है, पर सिर्फ नौकरी छोड़ने से पहले एक काम जरूर कीजिएगा. तो बोले हाँ बताइए. तो बोले ये एक ग्लास है, और उन्होंने ग्लास को ना एकदम ऊपर तक भर दिया, इतना ऊपर तक कि जरा सा भी हिलाओ तो पानी गिरता. और बोले अभी ये ग्लास भरा हुआ जो है वो आप एक फ्लोर का राउंड मार के मेरे पास वापस ले आइए, फिर मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेता हूं. तो वो ग्लास लेके बंदा गया बहुत सावधानी से, क्योंकि पानी गिरना नहीं चाहिए, और वो घूम के बहुत टाइम भी लगा अगले को, और वापस लेके आया. तो फिर एचआर जो थे उन्होंने बोला कि सर आपने जो फ्लोर का राउंड किया उसमें कितने लोगों ने बुरी बातें कही, कितने लोगों ने आप पे हंसा, कितने लोगों ने जोक किया. तो बोले मुझे तो ध्यान ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो पूरा कंसंट्रेशन वो ग्लास और पानी पे था. तो बोले वही बात है, आपका फोकस कहाँ पे है. अगर आपका फोकस सही जगह पे होता है तो आपको कोई भी बुरी चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी. और जैसे मैंने बताया, इफ यू कैन लर्न टू फोकस ऑन व्हाट यू चूज टू फोकस ऑन, दैट इज कॉल्ड टोटल फ्रीडम ऑफ माइंड. अब अगर हम दूसरी बात करें, सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात करी थी कि स्ट्रेंथ इज डेवलप्ड बाय कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग योर प्रोग्रेसिव ओवरलोड. ओके, सो आप अपने आप को इन अ वे टॉर्चर करते हैं. मैं वर्कआउट करती हूँ तो मेरा पर्सनल ट्रेनर मुझे इन अ वे टॉर्चर करता है कि जो वजन मेरे को दुखाता है वो मुझे बार बार कराता है, तभी मसल्स बिल्ड होते हैं. So strength is about doing something progressively tougher. और मैं यहाँ पे माइंड की स्ट्रेंथ को अगर बात करूं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. आपकी जड़ें, अगर आपके प्रिंसिपल्स और आपकी जड़ें मजबूत है, कोई भी आंधी आपको उखाड़ के नहीं फेंक सकती. सो अगर हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि गांधी जी ने कहा था कि when what you're thinking, what you're speaking and what you're doing is the same, you have total peace of mind. Now आप बताइए क्या हम वाकई में ये कर पाते हैं? अभी उदाहरण के स्वरूप में बताती हूं. लेट्स अज्यूम कि ये कोविड सिचुएशन नहीं है, हम एक दूसरे के घर आना जाना कर रहे हैं.
और आपके घर पे कोई आया है जो इंसान बहुत बोर करता है, वो दरवाजे पे आ गया, उसने घंटी मारी, आपने दरवाजा खोला, आप स्माइल देके बोलोगे आइए आइए आंटी जी, आइए आइए, कैसे हैं आप? अंदर में सोच रहे कहाँ सुबह सुबह आंटी जी आ गई, बाप रे अभी तो वो पकाएगी. So what you're speaking and what you're thinking is not aligned. And that is why you are so upset, frustrated and irritated. So जब तक कि आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अलाइन नहीं है, you're going to mess up. Now let's talk about principles. So अगर हम एक सामान्य प्रिंसिपल की बात करें कि my body is my temple, then is it not a place of worship? Should I not take care of my body? हम बोलते तो है my body is my temple, but do we actually take care of it? We do not. मेरे पास जब लोग आते हैं फॉर वेट लॉस, वो बोलते हैं मैम डाइट प्लान दीजिए पर चीट डे भी दीजिएगा. एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, अभी शुरुआत ही चीट डे से करनी है तो ये अचीव क्या करने वाले हैं? Right? So can you understand that how we have started thinking? Principally हम कुछ सोच रहे हैं, बोल रहे हैं. मैं आपको घर का उदाहरण देती हूँ. हम घर का उदाहरण देते हैं कि घर में बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे झूठ ना बोलना, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है. और किसी ऐसे बंदे का फोन आ गया जिसको आपको अटेंड नहीं करना, बच्चे को बोलोगे बोल दो पापा घर पे नहीं है, और आप बच्चे को इधर सिखा रहे हैं झूठ ना बोलो. आप बोल रहे घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, वास्तु के हिसाब से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइजीन के हिसाब से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पर जब हम रास्ते पे अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमने कोई टिश्यू यूज किया तो हम ग्लास रोल डाउन करके टिश्यू को बाहर फेंकते हैं. मतलब इस धरती को, इस रास्ते को, इस शहर को हम अपना घर नहीं मानते. सो प्रिंसिपली वी आर नॉट अलाइंड. And that is what you must work on because it is difficult, it is challenging. I just remember something कि मेरा बेटा जब स्कूल जाता था ना तो उसकी बैग में एक दिन मुझे पता चला बहुत सारी बैंडेड्स वगैरह रहती थी, क्योंकि घर में से बैंडेड जब भी ले आऊं गायब हो जाती थी. सो एक दिन मुझे पता चला कि जनाब अपनी बैग में बैंडेड्स लेके स्कूल जाते थे. सो मैंने उसको बोला बेटा इतनी बैंडेड का क्या करोगे? बोलते मम्मी कोई दोस्त को चोट लग गई तो. एंड आई फेल्ट वाओ, मैंने जो कंपैशन सिखाया है अपने बच्चों को वो जिंदगी के हर स्तर पे उसको फॉलो कर रहे हैं. पर हम कंपैशन की सीख सिखाएंगे पर उधर बोलेंगे अरे तो घर की बैंडेड थोड़ी ले जाके करते हैं, स्कूल में भी तो बैंडेड होती है ना, वो दिला के करा देना चाहिए. Then we are not actually teaching care and compassion for fellow human being. So we are principally not aligned. Now, if we talk about children going to colleges, this is the time they are most vulnerable and their peer opinion is extremely important for them. वहां पे उनके peers अगर स्मोक करना चालू करती है, आपका बच्चा स्मोक नहीं करना चाहता क्योंकि आपने सिखाया है. अब वो दोस्त उनके बोलते हैं एक पी लेगा तो तेरी मम्मी को थोड़ी पता चल जाएगा, और एक पीने से थोड़ी तेरे को कैंसर हो जाएगा, अपने फ्रेंड के लिए एक भी नहीं पी सकता. Now if you have not taught strong principles and the strength of character to your children, they will fall prey to this. पर अगर जिनके strength of character है वो क्या बोलेंगे, यार तू पी रहा है, मैं तेरे को कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो मैं नहीं पी रहा हूं, तू मेरे को क्यों बोल रहा है कुछ? अपने फ्रेंड्स रहते हैं ना, तेरे अपने वैल्यूज, तेरे प्रिंसिपल्स तू रख, मेरे वैल्यूज को मत छेड़, मैं भी तेरे वैल्यूज को नहीं छेड़ता. तो इतना तो बोल ही सकते ना. बट जिनके प्रिंसिपल स्ट्रांग नहीं है, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को दे हैव नॉट सीन देम स्टैंड अप, उनको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए देखा है, वहां पे वो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर डेवलप नहीं होता. और स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर कितना है वो कब पता चलता है पता है? ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ. वो कहते हैं ना कि अगर मैंगो को स्क्वीज करेंगे तो मैंगो जूस ही निकलेगा, और करेले को स्क्वीज करेंगे तो करेले का जूस ही निकलेगा. सो what is coming out of you, the reaction that you tend to give,
that will identify what your personality is, what your character is, how much principled you are. कि जब लाइफ आपको निचोड़ता है तो अंदर से निकल क्या रहा है. And this is what we should practice in totality. जो हम घर में करते हैं, हर जगह पे करते हैं, बच्चों के साथ भी करते हैं. जैसे गांधी जी ने कहा, आप जो सोचते हो, बोलते हो, करते हो, तीनों अलाइंड है, तो आई गारंटी यू विल एक्सपीरियंस tremendous bliss. And what I want you to do is write down if you have already thought of certain things where you have actually not valued these principles. अरे हम वेट लॉस करना चाहते हैं, पर दोस्त ने बोला, अरे एक दिन मेरा बर्थडे है, तेरे लिए खास गाजर का हलवा बनाया है. Am I going to eat it? Or am I going to say politely, no, thank you so much? That shows the strength of character. And that is what is going to keep you healthy. Not any weight loss program, not even yoga. Okay? So ये बातें हो गई strength की. अब हम बात करते हैं सबसे difficult चीज की. And that is balance. और जैसे हमने बात की फिजिकल योग में भी, जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो we learn to practice balance or achieve balance by focusing on something. So when you focus on some particular things, you will see that you will achieve balance of mind. You will not be reacting. कुछ अच्छा हो जाए तो आप खुशी से नाचने भी नहीं लगोगे, और कुछ बुरा हो जाए जिंदगी में तो आप मतलब दुख से खत्म भी नहीं हो जाओगे. That is called a balanced trait in life. So how do you achieve balance? You achieve balance by practicing mindfulness. Now, there is a lot of confusion about mindfulness. Mindfulness is about being present in the present moment, savoring what is happening currently in my life. So, अगर मैं खाना खा रही हूँ या पानी भी पी रही हूँ, so I am focused on only that particular task. I am not multitasking. So अगर हम बात करें कि हम कहाँ mindfulness practice नहीं करते, so if I talk about being judgmental, being assuming versus taking interest. So judgmental की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे को एक कहानी याद आ रही है जो बचपन में मैंने पढ़ी थी, सांप और मंगूस की कहानी. So there was this couple जिनको 15-16 साल शादी को हो गए थे पर बच्चा नहीं हुआ था. बहुत मिन्नतें करने के बाद उनके घर एक बेटा पैदा हुआ था और दोनों बहुत खुश थे. और उनके घर में एक उनका पेट मंगूस था. सो एक बार कुछ ऐसा हो गया कि वाइफ को भी घर से बच्चे को छोड़ के निकलना पड़ा और बच्चा 5 to 6 months. और वो महिला ने वो मंगूस को रिक्वेस्ट किया कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम बच्चे का ध्यान रखना. वो औरत जब वापस आती है घर में तो मंगूस उसको दरवाजे पे मिलता है और मंगूस के मुंह पे पूरा खून लगा होता है. और ये बड़ी परेशान हो जाती है कि इसने मेरे बच्चे को मार डाला, और वो एक लाठी उठाती है और पीट पीट के मंगूस को मार डालती है. और फिर बहुत दुखी होके अपने बच्चे के पास चली जाती है और देखती है बच्चा अच्छे से खेल रहा है. तब फिर उसे लगता है तो फिर इसके पास ये खून कहां से आया. तो उसने देखा बेड के बाजू में एक बड़ा सा सांप था. तो मंगूस ने उस सांप को मारा था और उसी के लिए उसके मुंह पे खून लगा हुआ था. This is called assumption. We assume too much too fast. We jump to conclusions very fast. और ये मैं एक्सरसाइज बहुत लोगों के साथ कर चुकी हूं, आपको सिर्फ बता रही हूं, आप सोचना. अगर मैं आपसे सबसे बात करूं, एक शब्द लिखो मोदी के बारे में. Just one word about Modi. How you would describe him? ऑनेस्टली मुझे बताइए, आप में से सबने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा कि नहीं?
How do you know I was talking about Narendra Modi? I could be talking about Nirav Modi. अभी जो आपने उनके चरित्र के बारे में लिखा है वो क्या मैच कर रहा है? This is called jumping to conclusions. Adult brain tends to jump to conclusions and we assume too much too fast. और वो जब हम करते हैं, हम ज्यादा सवाल नहीं पूछते, हम केयरफुल नहीं होते, and that is why we misjudge. और हमारा इतना अच्छा फ्रेंड जो मंगूस था, जो हमारे बच्चे की जान को बचाया था, हम उसको भी मार डालेंगे. So that is what is not being mindful. Okay. If I talk about hearing versus listening. So चूंकि यहाँ पे ज्यादा women हैं, आप में से कितनों ने महसूस किया है कि आप कुछ काम करते करते अपने हस्बैंड के साथ कुछ बात कर रहे हैं और लास्ट में आपको बोलना पड़ता है, आप कुछ सुन भी रहे हो क्या? I can see the smiles and I know you agree to me. This happens all the time. Do you realize your children also feel the same way about you? There was this boy, he called up his mother on landline. माँ सुनो, तभी मोबाइल की घंटी बजती है, तो बोलती है रुको रुको मोबाइल बज रहा है. मोबाइल उठाती है तो बोलता है माँ मैं ही हूं. तो बोले दोनों में क्यों फोन किया? बोले ताकि आप मेरे से ही बात करो, आप दूसरा फोन ना उठाओ. Okay, so we are hearing a lot of times, but we are not listening and paying attention. हमें लगता है it's okay. But let me tell you one thing that I learned in life, that a person worth listening to is worth looking at. है ना? So if you practice that, you will realize it will help you big time. Okay? So that is hearing versus listening. अभी मैं बात करूं looking versus seeing की. Now think about a day. It's a bright sunny day. बहुत दिन बादल थे और आज एकदम चमक के सूरज निकला है. और आप काम पे गए हो, wearing beautiful white clothes, white shoes. और जब तक आप काम से बाहर निकलते हो, बहुत तेज बारिश हुई है और सारे पौधे एकदम हरे भरे लग रहे हैं क्योंकि पोल्यूशन से उनके ऊपर धूल जो जमी होती है वो धुल गई है. दे आर लुकिंग वेरी फ्रेश. मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध आ रही है एंड माहौल बड़ा लाइवली हो रखा है. पर आप जो ही बाहर निकलते हो, आपकी नजर पड़ती है रास्ते पे, पानी पे और कीचड़ पे. एंड देन यू आर अपसेट एंड यू कांट इवन एंजॉय द ब्यूटिफुल नजारा, या उस फ्रेग्रेंस को भी ले नहीं पाते, भीनी मिट्टी की खुशबू को. Now you chose to focus on that. अभी मेरे को बताओ बुरे से बुरा क्या हो जाता? जूते धो ही लेने पड़ते, और जूते के बारे में इतने कंसर्न थे तो उसको निकाल के हाथ में पकड़ सकते थे, नंगे पांव जा सकते थे, घर जाके पैर को धो सकते थे और उस ब्यूटीफुल मोमेंट को एंजॉय कर सकते थे. But we chose, we had a choice to focus on good. We chose the bad. So that is the difference between looking and seeing thing in the correct and positive perspective. और मैं आपको बताऊं, अभी फिलहाल आप सब मेरी रिक्वेस्ट पे 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आप लाइफ के उस पल को याद कीजिए जो बहुत चैलेंजिंग रहा आपके लिए, बहुत तकलीफ दी आपको. That moment that shook you completely. Can you think of one positive thing about that situation? Try. आपको लगेगा उसमें क्या पॉजिटिव था. But if you focus very hard, anybody raise your hand and open your eyes if you found something positive in that situation. Some of you did. Congratulations. You will. Every time you have a negative situation, life is trying to teach you something. वो हमने क्या बोला? Progressive overload. That is what life is doing to you. और अगर आप उसमें से सीख लेने की सोचो तो आपको जरूर जिंदगी में कुछ बेहतरी होगा. इनफैक्ट मेरा तो फंडा है कि जब भी मेरी लाइफ में कोई चैलेंज आता है तो मैं ऐसे बात करती हूँ चैलेंज से कि मैं बोलती हूँ ओके मिस्टर चैलेंज, अभी आप आ ही गए हो तो बता दो कि मेरी कौन सी ताकत से मुझे वाकिफ कराने वाले हो जो मुझे पता ही नहीं है मेरे पास है.
Because once you cross a challenge, you realize, oh my God, I didn't know I was so strong to handle this. So मैं तो हमेशा ऐसे ही सोचती हूँ, and you may choose to copy me, I have no copyright on that. Okay? So that is seeing versus looking. आप क्या देखना चाहते हो वही आपको दिखेगा. Last, I would talk about eating versus savoring. हम टीवी देखते देखते, हम मोबाइल देखते देखते खाना खाते हैं. आप उनसे पूछिए कितनी रोटी खाई, उनको पता ही नहीं. आप पूछिए कल क्या खाना खाया था, उनको पता ही नहीं. वाइफ ने हस्बैंड को पूछा रोटी लोगे, बोले नहीं. 2 सेकंड बाद बोलते हैं अरे रोटी देना जरा, तो वाइफ बोलती है अभी तो पूछा था आपसे. बिकॉज योर माइंड वॉज नॉट देयर. So if you practice this, focusing on the present moment, you will realize that you will be able to practice mindfulness. और जो लोग mindful होते हैं वो ज्यादा compassionate होते हैं, ज्यादा kind होते हैं, ज्यादा open minded होते हैं, ज्यादा accepting होते हैं, है ना? So these are the people who will not see much of a challenge in life. और लास्ट में एक मेरी प्रेयर है जो मैं रोज करती हूँ, वो आपसे शेयर करना चाहूंगी. दैट प्रेयर इज द सेरेनिटी प्रेयर, जो नॉर्मन विंसेंट पील से मैंने सीखी है. वो कहते हैं, गॉड ग्रांट मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू. जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, जो आपके हाथ में नहीं है, उसको दिमाग से भी हटा दो, क्योंकि उस पर कुछ नहीं कर सकते. और जो आपके हाथ में है उसमें दिमाग लगा के कुछ एक्शन ले लो तो वो हो जाएगा. और दोनों का फर्क समझने की कोशिश करो, सिर्फ हाय तौबा मत मचाओ. लर्न टू रिलिश. हमारे लाइफ में हमने बच्चों को सिखाया कि जो इंसान आपको पसंद नहीं है, उनकी जो जो हरकतें आपको पसंद नहीं आई है, आपको क्या करना है, आपको उन हरकतों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है और अपने आप से वादा करना है कि ये तो हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं करेंगे. And just by taking these small baby steps towards mindfulness, you will not only have a healthy body, but you will have a superior mind, and you will be able to experience growth. और ये GPS आपको जिंदगी में आपकी जो मंजिल है मन चाही वहां ले जाने में सक्षम होगा. With this, over to Manju ji. Thank you so much, Anjali. It was so good. Actually, she said it all. I would say कि कितनी बार उन्होंने माइंडफुलनेस के बारे में हमें कितने एग्जाम्पल्स दे डाले. आज का आपका ये होमवर्क है ना. You remember all the examples given by Anjali, right? चाहे वो उन्होंने वो उस ग्लास को लेके चलने वाले बंदे की बात कही, चाहे वो उन्होंने अपना कंसंट्रेशन करवाया वृक्षासन में, चाहे उन्होंने अपने बारिश में चलते हुए अपने चप्पल को उतार के और उसको अपने जो भी है मौसम को एंजॉय करने के बारे में आप उस वक्त पे माइंडफुल हो सकते थे, राइट? सो द examples she gave were like amazing, right? So I had planned कि आज मैं थोड़ा mindfulness में 1-2 जगह पे आपको थोड़ा सा अपनी breath पे फोकस करवाऊंगी या mindfulness की एक एक्टिविटी करवाऊंगी, बट उन्होंने इतने अच्छे से एग्जाम्पल्स दिए हैं कि I think you all know how your mind works, right? And how if you align your body with mind, as Anjali said, if you align your body with mind, you can achieve the highest this thing, your maybe peace of mind or the goal you want to achieve. That could be, जो योग की अगर लैंग्वेज में मैं कहूँ तो आप bliss को you can have a blissful life, right? You can achieve samadhi actually. तो अगर इसको हम कभी एक्चुअली योग सूत्र के माध्यम से इसको जानना चाहेंगे, तो अंजलि वी कैन हैव दिस दैट विद ऑल these are all the ladders, I would say, है ना. एक एक स्टेप है, सीढ़ियां हैं जो अगर हम चढ़ते जाएंगे तो विद ईच
the ultimate goal of yoga, which is samadhi, right? So samadhi is not the samadhi post death. Here it is yogic samadhi, when you are united with the supreme, right? When your soul is united with the supreme, right? So that is samadhi, right? So चलिए आज it's about 10:30, but चलिए आज 5 से 7 मिनट आपके एक्स्ट्रा लेते हैं, right? So sit straight quickly. कैसे अलाइन करेंगे अपने शरीर को ब्रेन के साथ या दिमाग के साथ या माइंड के साथ या मन के साथ? चित्त की बात करते हैं योग में, तो कैसे अलाइन करेंगे अपने शरीर को चित्त या मन या माइंड, जो आज का हमारा टॉपिक था, उसके लिए चलो थोड़ी देर के लिए माइंडफुलनेस एक एक्टिविटी कर लेते हैं, कनेक्टेड विद योर ब्रेथ. सिट स्ट्रेट, हेड स्ट्रेट, neck straight, back straight, eyes closed. मस्तक गर्दन सीना तीनों एक लाइन में, सीधा बैठे. आंखें बंद. धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर. Don't be judgmental of your breath, right? Just observe your breath. धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर. Be watchful. Be mindful to your breath. धीरे धीरे सांस अंदर. देखें, एक भी सांस बिना आपकी परमिशन के अंदर ना पाए. एक भी सांस बिना आपकी परमिशन के बाहर ना जा सके. Observe your breath. Follow your heartbeat. अपने दिल की धड़कनों को सुनने की कोशिश करें. धीरे से अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में आग्नेय चक्र पे ले जाएं. Eyeballs getting closer to each other. Focus on आग्नेय चक्र, forehead पे बिंदी वाली जगह. Eyeballs, आंखों की पुतलियां शांत. विचार आ रहे हैं, आने दें. उन्हें रोके नहीं. पर ध्यान सांसों से हटे भी नहीं.
एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे से बाहर, फिर से सांस अंदर, धीरे से बाहर। एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ, आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम फ्लेक्सिबल, आई एम फ्लेक्सिबल। मैं फ्लेक्सिबल हूं, शरीर से, दिमाग से, मन से। मैं बैलेंस्ड हूं, शरीर से, दिमाग से, मन से। Say to yourself, मैं स्ट्रांग हूं, शरीर से, दिमाग से, मन से। I am flexible, I am strong, I am balanced. Slowly breathe in, gently breathe out. धीरे से दोनों हाथों को जॉइन करें, नमस्ते मुद्रा में। चैंट अ प्रेयर, सांस अंदर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Bow down, surrender to yourself. And slowly you may open your eyes.